में देंगी। अब स्पेशल मेंशन माननीय जवाहर सरकार नॉट प्रेजेंट, डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे। धन्यवाद उपसभापति महोदय। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप का प्रयोजन है, जिसका काम प्रेमको रेल इंजीनियर लिमिटेड कोलकाता को दिया गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट उनको वर्ष 2018 में दिया गया था और वर्ष 2021 तक कार्य को पूरा करने का समय था। अभी तक इन्होंने सिर्फ 90% कार्य पूरा किया है। शुरुआत में इसकी लागत 163 करोड़ रुपए थी, लेकिन विलंब होने के कारण आज इसकी लागत 299.37 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि इसके काम की क्वालिटी की जांच की जाए, इसका थर्ड पार्टी ऑडिट भी करना चाहिए। यह वैगन रिपेयर कारखाना है और इसके दीवार में जो क्रैक आए हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। यह काम 100% सुरक्षित एवं जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी से यह विनती करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी। Namaskar, sir. Andhra Pradesh is the state with the second longest coastline in India. This translates to a huge scope for mining of beach sand minerals like uranium and thorium. The AP government plans to develop integrated beach sand minerals project, including downstream plants for value-added products that will help utilize these minerals for national benefit. The state government has submitted proposals to the central government for reservation of 16 BSM bearing areas in favor of AP Mineral Development Corporation. The clearance for 14 mineral bearing areas is still pending with the Department of Atomic Energy, Government of India. I request the Ministry of Mines to relax the area limit permitted under Rule 6(1) of Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. This step will further aid in establishment of the integrated beach sand minerals project and help utilize the minerals which are otherwise not being utilized. I urge the Government of India to look into the matter and impart speedy redressal. Thank you, sir. Thank you. माननीय श्री नीरज डांगी। Thank you, Vice Chairman, sir, for giving me this opportunity to raise this important issue in the House. As per Rule 3 of Companies Appointment and Qualification of Directors Rule 2014, every listed company or any other public company having certain paid-up share capital or turnover shall appoint at least one woman director. This step was taken by the government to have a fair representation of women in the corporate boardroom, who constitute around 50% of population. Why can't a similar provision be made for SC, ST, OBCs, who constitute around 85% of the country's population and have negligible representation in the board of directors? The SC, ST, OBCs community rarely entered into boardroom, even though they are meritorious and qualified enough. This has not only demoralized them, and most of them have lost confidence in top management. Recently, Parliamentary Standing Committee has expressed its displeasure that there is no SC or ST member in the board of directors of most of the PSUs to adequately safeguard their interests. Therefore, Honorable Vice Chairman, sir, through you, I would like to request Government of India to amend the company's rules for representation of SC, ST, OBC in the board of directors. Thank you, sir. Honorable V. Vijay Sai Reddy. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, my special mention is request to improve the credit facilities for MSMEs, sir. MSMEs are the backbone of our economy. They contribute to 27% of our GDP, 45% of our exports, and create jobs for 11 crore people. They play a crucial role in bringing the benefits of industrialization to rural and backward areas. The success is critical to the Indian economy. However, there are two key issues
plaguing their effective functioning of MSMEs. Sir, firstly, MSMEs are struggling to repay the credit dues within the stipulated 90 days limit. The limit is irrational because the working cycle of most MSMEs exceed 90 days. Since MSMEs do not receive timely payments from the buyers, they are unable to repay loans within time and end up defaulting. The rising NPAs in MSME sector has made banks reluctant to give them credit. Secondly, sir, MSMEs have been unable to get institutional finance for upgrading technology due to discontinuation of credit-linked capital subsidy scheme for technology upgradation. Although new MSME champion scheme is being implemented, it is not exclusively targeted at technology upgradation, and it has not been able to address the technology deficit in MSME sector. Sir, within the budget making exercise, with the budget making exercise in the for next year underway, I request the government to provide support to MSMEs through 1. Extension of repayment limit from 90 days to 180 days, which will enable MSMEs to repay loans, and number 2, revival of credit-linked capital subsidy scheme for technology upgradation, which will enable MSMEs to become globally competitive. Thank you. Thank you. माननीय श्री राजमणि पटेल। माननीय सभापति महोदय, हमारा स्पेशल मेंशन का विषय है कन्नाट प्लेस क्षेत्र जनपद लैन क्षेत्र के अंतर्गत न्यायालय के आदेश के तहत पटरी विक्रेताओं बैठने की अनुमति बाबत एनडीएमसी द्वारा वर्ष 2007 में विक्रेताओं के फॉर्म भराए गए थे। उसमें से 82 विक्रेताओं को सामान बेचने के लिए पटरी पर बैठने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद अतिक्रमण के नाम पर उन सभी को हटा दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही के खिलाफ प्रभावित 82 विक्रेताओं द्वारा उच्च न्यायालय दिल्ली में याचिका दायर की गई, जिसके प्रकरण क्रमांक 819 दिनांक 22/6/2016 को न्यायालय द्वारा 82 विक्रेताओं को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने तक यथावत पुराने स्थान पर बैठकर सामान बेचने की अनुमति देने का आदेश पारित किया गया था। माननीय सभापति महोदय, लेकिन 82 में से 22 विक्रेताओं को न्यायालय के आदेश के बावजूद बैठने की अनुमति आज तक नहीं दी गई, जो न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मानवीय आधार पर विचार कर 22 शेष विक्रेताओं को भी अनुमति दी जाए, ताकि उनके परिवार को भूखमरी के शिकार से बचाया जा सके। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अप्रूव्ड टेक्स्ट ही हम लोग पढ़ सकते हैं अपनी ओर से, उसमें कुछ और नया नहीं जोड़ या घटा सकते। माननीय श्री विनय दीन तेंदुलकर। धन्यवाद सभापति महोदय। स्थापित आयातित संचार उपकरणों में संग्रहित जानकारी की सुरक्षा एवं शासकीय और अर्ध शासकीय प्रतिष्ठानों में सुरक्षा ऑडिट के संबंध में मैं मेरा कागज सभा पोर्टल पर रखता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल पी विल्सन। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, I wish to raise an urgent public importance matter relating to CGHS. Sir, this is with regard to the pressing problems of the Central Government Health Service Scheme and its lacks of beneficiaries, which include central government employees, central armed police forces, railway and pensioners, which are detailed below. There are only 2014 empaneled hospital diagnostic centers under the CGHS schemes across the country, with only 49 hospitals / centers for Tamil Nadu, which are understaffed and located in remote areas. Even in populated cities such as Chennai, there is no reputable or multi-speciality hospitals in the CGHS approved list of hospitals. Beneficiaries have to travel considerable distance for procedures and to obtain blood tests, X-rays or scans, posing logistical and cost obstacles. The eligible reimbursement limit under the CGHS scheme is very meager,
compared to cost of treatment, thereby impeding employees to get effective treatment while approaching these hospitals. Only few CGHS units practice alternate medical systems like Ayurveda, homeopathy, Unani. There are no experts at CGHS and staff members perform just reference work. Delays in reimbursing recipients is one of the most often lodged grievances. Clinics are only open a few days a week for a few hours and are closed on national holidays, making them inaccessible when it comes to emergencies. Since many hospitals are tied with insurance companies, I request the Minister of Health and Family Welfare and Minister of Personal, Public Grievances and Pensions Department to immediately consider linking CGHS with private medical insurance coverages for better medical treatment for CGHS beneficiaries and save their life, health and families. Thank you, Deputy Chairman, sir. Thank you, माननीय पी विल्सन जी। डॉक्टर साहब एसोसिएट करने के लिए नाम भिजवा दीजिएगा। धन्यवाद। माननीय श्री सकलदीप राजभर, माननीय श्री सकलदीप राजभर। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने बोलने के लिए समय दिए, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय महोदय जी, भारतीय रेल द्वारा कैंसर रोगियों को टिकट मूल्य पर सब्सिडी देने से रुग्ण व्यक्ति देश के किसी भी अस्पताल में जाकर उपचार की सुविधा पाते हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय देश के मजलूम गरीब किसान मजदूर तथा आर्थिक रूप से दबे कुचले लोगों को भी कभी कभी उचित अस्पताल न मिलने से रुग्ण अवस्था में खर्चीली एम्बुलेंस का व्यय न दे पाने के अभाव में लाखों लोगों का जीवन और समय समाप्त हो जाता है। माननीय महोदय जी, वैश्विक स्तर के अस्पताल महानगरों के रोगियों का उपचार बेहतर स्तर पर होता है, जबकि ग्रामीण अंचल में गंभीर बीमारी का उपचार की व्यवस्था बहुत कम है। ऐसे में ग्रामीण अंचल के मरीजों को दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई आदि बड़े महानगरों में ले जाने और ले आना पड़ता है, जिसमें एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था बहुत महंगी पड़ती है। ऐसी सूरत में गंभीर रोगियों को ट्रेन का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए गरीब लोगों को उपचार हेतु भारत के समस्त ट्रेनों में एक एसी कोच जिसका दरवाज़ा व गली चौड़ा हो, टॉयलेट, स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, बेड, ऑक्सीजन युक्त जिसका आरक्षण IRCTC एप्लीकेशन की व्यवस्था अति आवश्यक है। अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि इस विषय में व्यापक स्तर पर जनहित का ध्यान रखकर मांग की गई समस्त सुविधाओं को पूरे भारत की ट्रेनों में व्यवस्था कराने की कृपा करें। जय हिंद। ऑनरेबल M. Shanmugam. Thank you, Vice Chairman, sir. I raise for the subject need to issue notification to enable workers to get gratuity up to 20 lakhs during the intervening. Sir, the 7th Central Pay Commission has enhanced the ceiling of gratuity from gratuity to 20 lakhs from 1/1/2016 for the government servant. However, on persistent demand from the workers for payment of gratuity on par with the government employees, the payment of gratuity was modified by using the notification only on 29th March 2018 to the effect that the amount of gratuity shall not exceed rupees 20 lakhs, but it is done prospectively instead of from 1/1/2016. Hence, for the workers who retired during the intervening period 27 months and whose eligibility of gratuity is more than 10 lakhs, their gratuity is restricted to rupees 10 lakh. For earning a gratuity of rupees 20 lakh, the worker should be at least drawing salary above 1,15,550 per month. Therefore, I demand that the ceiling limit of gratuity should be enhanced to rupees 20 lakhs during the intervening period January 2016 to March 2018.
It would also not impinge on the finance of the companies, since there will be very few people left. Even some employers are also ready to pay enhanced gratuity as they will get the tax relief, but since the ceiling has been fixed, they are not able to do so. Hence, I request the Honorable Minister for Labour and the Honorable Minister for Finance to take the initiative by notifying the provisions for the intervening period without a delay to those who are eligible during the intervening period of 27 months would get their gratuity above rupees 10 lakhs but restricted to 20 lakhs. Thank you, sir. Thank you. माननीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। भारत सरकार उड़ान योजना के अंतर्गत बहुत सफलता के साथ छोटे छोटे महानगरों के बीच सस्ते वायु मार्ग पर जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स का संचालन कर रही है, लेकिन अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और उसके आइलैंड्स अगत्ती, कवराती, एंड्रोट, मिनिकॉय, चेलटाट, बित्रा, किल्टान, कैडमट, अमीनी, बंगारम और कालपेनी तक आने जाने के लिए हवाई सेवा प्रारंभ नहीं की गई है। पूरे आइलैंड से एक बड़ी संख्या में मरीजों और शिक्षकों, छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए केरल आना पड़ता है। लक्षद्वीप में उद्योग धंधे और बड़े बाजार नहीं होने से बहुत से नागरिकों को रोज केरल आना जाना होता है, लेकिन अगत्ती एयरपोर्ट से सिर्फ एक 72 सीटेड जहाज आता है। गंभीर मरीज इलाज के अभाव में मर जाते हैं। 10 द्वीपों के बीच में आवागमन के साधन सिर्फ एक आध समुद्री नाव हैं जो समय बहुत लेती है। केरल आने जाने के लिए कम से कम 5 से 6 जहाज प्रतिदिन की ज़रूरत है और अंतर्द्वीपीय यात्रा सुगम बनाने के लिए प्रातःकाल 8 बजे से सायंकाल 6 बजे के बीच हेली सेवा प्रारंभ करना राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकता और अखंडता के लिए अत्यंत आवश्यक है। 95% मुस्लिम बहुल होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों जमायत इस्लामी PFI की नज़र लगी हुई है। मुस्लिम समाज के राष्ट्रवादी होने के कारण उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी भी समाज को इस प्रकार शेष भारत से काटे रहेंगे तो षड्यंत्रकारियों को अपने देशघाती मंसूबों में कामयाबी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। निवेदन है कि केरल से लक्षद्वीप जहाज़ों की संख्या तथा सभी द्वीपों में आपस में अंतर्द्वीपीय उड़ान की हेली जहाज सेवा प्रारंभ कराई जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। प्लीज सेंड योर नेम हियर। माननीय श्री खीरू महतो जी। सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आसन के आभारी हैं। महोदय, झारखंड प्रदेश के रामगढ़ जिला में कोल बेरिंग एरिया एक्ट 1957 के तहत भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 347 दिनांक 3/2/2004 के माध्यम से सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया द्वारा ग्राम केदला में 475.40 एकड़ जो लगभग 152.46 हेक्टेयर हैं जमीन का अधिग्रहण किया गया था। उपरोक्त भूमि अर्जित करने के पहले 1974-75 से CCL कोल इंडिया कार्य करती चली आ रही है और रैयतों को ग्रामीण भू विस्थापितों के साथ 1978-79 में CCL कोल इंडिया ने एग्रीमेंट किया था कि जब तक भूमि का मुआवजा CCL प्रबंधन नहीं देती है तब तक फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रति वर्ष किया करेगी। परंतु 2004 में कोल बेरिंग एरिया एक्ट 1957 के तहत अधिसूचना के बाद ना ही फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान कर रही है और ना ही मुआवजा का भुगतान कर रही है। आज तक 20 वर्षों का एक मुफ्त फसल क्षतिपूर्ति भुगतान एरियर के साथ साथ भू विस्थापितों को वर्तमान दर पर मुआवजा सरकार कराने का काम करे। महोदय, यह जमीन है 43 साल से बर्बाद हो चुका है। इसमें नियमितः जो लिखा हुआ और एक प्रूफ टेक्स्ट है माननीय चेयरमैन का, वही पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। ऑनरेबल KRN राजेश कुमार। Honorable Deputy Chairman, sir, my special mention on
railway demands of Namakkal district in Tamil Nadu. The Namakkal railway line, which provides direct connectivity between Salem, Karur, started during the financial year 1996-97 at an estimate cost of rupees 229.88 crore. But the project has been completed in the year 2013-14 at a total cost of rupees 750 crores. Due to delays, however, it is not utilized to its fullest potential. Mallur, Rasipuram, Kalangani, Namakkal, Mohanur are the stations in the railway line. It is really pathetic that the district headquarters Namakkal has only 21 train stoppages per day altogether, and it is even more pathetic because the another station in this line gets less than 10 train stoppages per day altogether. Only one train via this route is connecting to the state capital, and that too does not halt in another station than Namakkal. Also, there is no daytime trains in the route except a passenger. And the worst is on Sundays, this passenger train is not operated. The tourist visiting famous Holy Hills, which is now become a favorite tourist destination, and visitor to Namakkal Anjaneya temple are affected majorly due to non-availability of trains, and they are changing to road transport from Salem Junction. More than 8 years, the people are demanding for additional trains through Salem, Namakkal, Karur route, but it is not materialized till date. I have demanded the same twice via DO letter to GM Southern Railways, but the response was negative, like not possible, low patronage, etc., etc. Therefore, I humbly request the Honorable Railway Minister via this special mention that Railway should operate more new trains and provide additional stoppages on Salem, Namakkal, Karur line by taking necessary action. Thank you, sir. Thank you. माननीय श्री सैयद नासिर हुसैन. Thank you, Deputy Chairman, sir, for allowing my special mention. It's about demand for restarting regular hiring in the Indian Armed Forces. Sir, at the moment when China is sitting at our borders, Pakistan is on the other side, there is a possibility of a two-front war as well. The government's decision to stop regular hiring in the Indian Armed Forces is a threat to our national security. The government has submitted before the Delhi High Court that all recruitment in into armed forces will now be conducted only through the Agnipath scheme. As per a reply in this House, the government has recruited only 13,000 people in the army for the year 2021. No recruitment has been made in 21-22. The regular hiring has completely stopped. With shortage in recruitment, there is huge operational challenges faced by the Indian Army, as around 50,000 Jawans retire each year from the 1.4 million strong army, which adds to the potential operational challenges with regard to its manpower intensive deployments along India's disputed borders. Moreover, last year it was told to Parliament that Army faced a shortage of 104,653 troops, including junior commissioned officers who were essential as a link between officers and other ranks, particularly during field operations. Of them, 7,476 were officers and 97,177 were Jawans. Given the urgency of the situation, I would like to request the Government of India to intervene in this matter and immediately take steps to start the regular hiring in armed forces, especially in view of the Chinese threat at our borders. Thank you, sir. Thank you. माननीय श्री राकेश सिन्हा. उपसभापति महोदय, धन्यवाद. यह मेरा विशेष उल्लेख जल जमाव के कारण कृषि योग्य भूमि पर प्रभाव पर है. कृषि योग्य भूमि में जल जमाव की समस्या का प्रत्यक्ष प्रभाव किसानों के जीवन और कृषि उत्पादकता पर पड़ता है. असम, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में
लाखों हेक्टेयर भूमि पर यह समस्या विद्यमान है। अकेले बिहार में कुल कृषि भूमि का 10% लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर जल जमाव 3 महीने से 7 महीने तक रहता है। गंडक, गंगा, कोसी नदियों एवं लो लैंड में वर्षा के कारण यह समस्या है। मेरे गृह जिला बेगूसराय में 16,238 हेक्टेयर भूमि पर जमाव की समस्या का जटिल असर किसानों के जीवन पर है। ये सभी सीमांत और लघु किसान हैं। चौकी, वीरपुर, भगवानपुर, छोराही, नावकोठी, गढ़पुरा, तेघरा, बछवाड़ा, चिरिया बरियारपुर, खुदानंदपुर, बखरी, बरौनी में जल जमाव है। ऐसे क्षेत्र को चौर कहा जाता है। मोकामा टाल 4-5 जिलों में विस्तृत है और लगभग 85,000 हेक्टेयर भूमि जल जमाव से पूर्ण रूप में उपयोग नहीं आ पाता है। मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, पटना, नालंदा को टाल क्षेत्र स्पर्श करता है। लो लैंड का निदान एवं अन्य क्षेत्रों से जल का निकासी करना ही इसका समाधान है। मैं इन क्षेत्रों में गया और किसानों से मिला। उनके दर्द का बयान करना कठिन है। गुजरात में नर्मदा का पानी 400 किलोमीटर से अधिक ले जाया गया, यह रास्ता दिखाता है। बेगूसराय में तो मात्र 2 किलोमीटर पानी की निकासी से इस भूमि को जल जमाव से मुक्त किया जा सकता है। अतः आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि इस समस्या को गंभीरता से लेकर जल जमाव को समाप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय समुचित कदम उठाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती मौसम नूर। Thank you, Deputy Chairman, sir. My special mention is on the need to address the issue of human-animal conflict. The Sundarbans in Bengal has been described by the International Union for Conservation of Nature as the global hotspot for human-tiger conflict. It has seen over 30 tiger-related deaths since April 2020. In 2019-21, there were 11 elephant deaths caused by trains in West Bengal. The depleting forest land also raises problems of man-animal conflict. Since last year, 108 people have died and 114 elephants have died in Bengal. Bengal's forestry projects have regenerated large patches of degraded forest, thus providing shelter and migration corridors to elephants. The main reason for human-wildlife conflict is the loss of forest, movement of human beings to forests for illegal collection of forest produce, and loss of fodder for animals in the forest. The state government pays compensation to those who have lost lives or crops, but this can only do so much. While there is a need to protect these majestic species, there is also a need to ensure that people living in the fringes of forest or the corridor trails used for elephant migration are not adversely affected by the natural activities of wildlife. I urge the government to look into this matter urgently, as the issue of human-animal conflict is only costing lives of both humans and animals. Thank you. माननीय श्री मानस रंजन मंगराज। Honorable Deputy Chairman, sir, my subject is providing mobile connectivity to all villages of Odisha. Sir, mobile service is fast moving and has become an essential part of the daily life of the common people. In this context, it is highly disappointing that Odisha has been a connection deficit state for a long period. The tele-density of Odisha is 74.38% against 84.88% in all India as on 31st March 2022. The state of Odisha has the highest number of uncovered villages among the states in India WRT mobile connectivity. In the most recent survey carried out by the DOT LSA Odisha, 6278 numbers of such villages have been identified as of March 2021 out of 51,000 villages approximately. Considering their geographically location, about 1,000 mobile towers are required to provide mobile network connectivity to these villages. I urge the government to take cognizance of this issue and make efforts to improve the mobile connectivity of Odisha. Thank you, sir. Thank you. माननीय श्री सतीश चंद्र दुबे।
उपसभापति महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस लोक महत्व के विषय को रखने का मौका दिया। मेरे गृह जिला पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत टाइगर रिजर्व में बाघों और मनुष्यों के बीच संघर्ष होना चिंता का विषय है। यह बाघ अभयारण्य लगभग 900 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जो उत्तर प्रदेश के वन रेंज से निकलकर हिमालय की तलहटी तक फैला हुआ है। यहाँ वर्ष 2014 में 32 बाघ थे, जो 2018 में बढ़कर 50 हो गए और वर्ष 2022 की गणना में बाघों की संख्या और बढ़ी होगी। वन जीवों और जंगल के आसपास रहने वालों के बीच संघर्ष की खबरें आती रहती है, पर आजकल आम घटना जैसा प्रतीत होने लगा है। यहाँ के आसपास में रहने वाले परिवार हमेशा रात दिन एक डर भय के साए में जीवन यापन कर रहे हैं। अभी हाल ही में लगभग 2 महीना पहले एक बाघ ने लगभग 8 से 9 लोगों को मार दिया था, जिसके बाद उस बाघ को वन विभाग के द्वारा मार दिया गया। उक्त बाघ ने पश्चिमी चंपारण BTR इलाके के आसपास आतंक मचा रखा था। अतः आपके माध्यम से मेरा वन पर्यावरण मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का जो क्षमता है उतने ही बाघों को वहां रहने दिया जाए, अन्य बाघों को किसी अन्य उपयुक्त जंगल में ले जाने का प्रबंध किया जाए। साथ ही जंगल के आसपास में रहने वाले ग्रामीण के पालतू मवेशियों के लिए टेक्निकल आवास बनाया जाए, जिससे BTR के आसपास रहने वाले आम लोग बिना डर भय के अपना जीवन यापन कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री धनंजय भीमराव महादिक। धन्यवाद उपसभापति जी। आपने मुझे स्पेशल मेंशन में महाराष्ट्र में सातारा, पंढरपुर, कुरुल, कामती इस मार्ग को सोलापुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 166 में शामिल करने के संदर्भ में बोलने की अनुमति दी। सर, उपरोक्त मार्ग महाबलेश्वर, सातारा, पंढरपुर, सोलापुर, तुळजापुर और अक्कलकोट इन प्रमुख पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थलों को जोड़ता है तथा 4 प्रमुख पंढरपुर सर्किट इस सड़क से होकर पंढरपुर के धार्मिक स्थल तक जाते हैं। इनमें आषाढ़ी यात्रा, कार्तिकी यात्रा, चैत्री यात्रा और माघी यात्रा के लिए आने वाली कई दिंडी पद यात्रा और यात्रा करते हैं। यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पश्चिमी तरफ है। मुंबई, पुणे, बेंगलोर इस मार्ग से जुड़ा हुआ है, जबकि पूर्वी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 166 रत्नागिरी सोलापुर भी इस सड़क से जुड़ा हुआ है। इस सड़क पर लगभग 15 शुगर फैक्ट्रीज है जो इस सड़क का उपयोग गन्ना और चीनी के परिवहन के लिए कर रहे हैं। आपसे इस माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि सातारा, पंढरपुर, कुरुल, कामती इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 166 में सोलापुर तक शामिल करें। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री कामाख्या प्रसाद तासा। थैंक यू सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। मैं कैंसर के बारे में बोलना चाहता हूँ। द रीजन इज विटनेसिंग एन alarming rise in the number of cancer patients and the corresponding high fatality rate in recent years. As per report, the Northeast has the highest incidence of cancer in India, and the number of cancer cases is projected to be increased in region by 13.25% by 2025. The cancer cases in Assam have increased rapidly, and Kamrup Metro reported 170 cancer cases per 1 lakh among women, according to the data released by ICMR. The above alarming facts that have been revealed in the National Cancer Registry Program reports of 2020 released by the ICMR and National Center for Disease Informatics and Research NCDIR. In Assam, around 33,000 people affected with the cancer per year. The number based upon the crude number of cancer patients registered under 3 population based cancer
registers stationed at Guwahati, Dibrugarh and Kachar district, considering 60% of the population are from rural areas. In India, Kamrup urban district showed the highest annual increase in the incidence of cancer at 3.8%. Dibrugarh district showed the decline of 1.3%. In the incidence of cancer amongst men, the proportion of tobacco-related cancer in Assam for men was 52% and around 22% for women. Assam government, with its collaboration with a private trust, established 19 cancer hospitals in Assam. Though Ayushman card and Atal Amrit card provides financial help, but I think it will not solve the problem. Hospital will be in use after the disease takes place. So I urge the government through you that there is an urgent need of develop a comprehensive cancer control program in Assam. A special study should be done in the area, and need of a special awareness drive should be implemented for the public to prevent cancer. Thank you, sir. Thank you. माननीय श्री पवित्र मार्गेरिटा. Thank you, sir. My subject is appeal to declare ostomy patients as spatially able, that is दिव्यांग. ostomy मरीजों को दिव्यांग श्रेणी में लाने के लिए आपसे विनती है. जिन मरीजों के मलमूत्र मार्ग में कैंसर, कोलाइटिस, अल्सर हो जाता है, उनकी जीवन की रक्षा करने के लिए एक शल्य चिकित्सा द्वारा उनका रेक्टम या ब्लडर निकाल दिया जाता है और पेट पर एक संरचना बनाकर उस पर बेग चिपका दिया जाता है, जिसमें लगातार रिसाव होता रहता है. बेग आजीवन बदलते रहना पड़ता है, जिसके कारण वो दर्दनाक जीवन जीते हैं. यह बीमारी भयावह है और इसका कोई विकल्प नहीं है. सर्वे के अनुसार भारत में ऐसे 4 लाख मरीज हैं. महाराष्ट्र में 1 लाख, असम में हजारों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक है. ऐसी मरीजों को दिव्यांग श्रेणी में रखने से इन जिंदगी में सुधार आएगा. उनको लगने वाली बैग और अन्य सामग्री जो विदेश से मंगाई जाती है, उसका भारत में निर्माण करने का अवसर प्राप्त होगा और सरकारी विभिन्न योजनाओं में उनको लाभ मिलेगा. विकसित देशों में इन मरीजों को दिव्यांग का दर्जा दिया गया है. भारत के भी अनेक बड़े बड़े डॉक्टर और अस्पतालों ने माना है कि इस प्रकार के जरूरतमंद मरीजों को सरकार से दिव्यांग का दर्जा देकर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करें. देश भर के ओस्टोमी मरीजों की इस समस्या को देखते हुए हमें सहानुभूतिपूर्वक समाधान करने के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं. धन्यवाद. माननीय श्री विप्लव कुमार देव. माननीय विप्लव जी. महोदय, फेनी नदी पर बने भारत बांग्लादेश मैत्री ब्रिज के ऑपरेशन को जल्द शुरू करने के संबंध में महोदय, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्रालय से आग्रह करना चाहूँगा कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार से हस्तक्षेप कर फेनी नदी पर बने भारत बांग्लादेश मैत्री ब्रिज का ऑपरेशन जल्द शुरू कराने का प्रयास करे. 9 मार्च 2021 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने वर्चुअल रूप से भारत बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बने मैत्री ब्रिज का उद्घाटन किया था, मगर बांग्लादेश की तरफ अभी तक लैंड कस्टम स्टेशन नहीं खुला गया है, जिसके वजह से वह अति महत्व की परियोजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. बताया गया है कि राज्य सरकार ने इस विषय में विदेश मंत्रालय के साथ संवाद किया है, मगर मैत्री ब्रिज का ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है. हमारे तरफ यानी भारत की तरफ से सारी जरूरी सुविधाएं बना ली गई है, मगर बांग्लादेश की तरफ से लैंड कस्टम स्टेशन का कार्य अधूरा है. अतः आपसे आग्रह है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार से बात कर ऑपरेशन शुरू होने में या व्याप्त कमियों को दूर करे, ताकि कम से कम यात्रियों की आवाजाही शुरू हो सके. भारत बांग्लादेश मैत्री ब्रिज का ऑपरेशन शुरू ना होने की वजह से त्रिपुरा
उस एसओपी का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जिसके जरिए हमें चट्टग्राम और मंगला पोर्ट के उपयोग की अनुमति मिली हुई है। मैत्री ब्रिज के चालू होने से त्रिपुरा समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लाभ होगा और दोनों देशों के बीच आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय श्री प्रमोद तिवारी। धन्यवाद उपसभापति जी, आज आपने रिकॉर्ड बना लिया इस सत्र में सबसे ज़्यादा समय चलाने का, और सभी सदस्यों को बधाई देता हूं जिससे मैं उठा सका आदित्य जैन जी और राजस्थान के जैन लोगों का विषय है मेरा समेत शिखर जी पारसनाथ पर्वतराज को पर्यटन स्थल की सूची से बाहर किए जाने के संदर्भ में। श्री समेत शिखर जी पारसनाथ पर्वतराज गिरडीह जैन तीर्थंकरों और अनंत संतों की मोक्ष स्थली है। वहीं समेत शिखर का कण कण जैन समाज के लिए पूजनीय है। 2 अगस्त 2019 को तत्कालीन झारखंड सरकार 2 अगस्त 2019 को तत्कालीन झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा झारखंड के गिरिडीह जिले के मधुबन में स्थित सर्वोच्च जैन शाश्वत तीर्थ समेत शिखर को वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भाग मानकर इको सेंसिटिव के अंतर्गत पर्यावरण, पर्यटन और अन्य गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति दे दी गई थी, जिससे वहां पर होटलों आदि का निर्माण तथा पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से वहां पर मांस मदिरा का उपयोग शुरू हो जाएगा। पर्यटन गतिविधियों से जैन समाज की आस्था के स्थल श्री समेत शिखर की पवित्रता, आस्था एवं श्रद्धा प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए जैन समाज पिछले 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं और अब तो जैन समाज के हजारों लोग अन्न भी त्याग दिए हैं। अतः आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि श्री समेत शिखर पारसनाथ पर्वतराज को वन्य जीव अभ्यारण्य पर्यटन के लिए इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत जोनल मास्टर प्लान, पर्यटन मास्टर प्लान व पर्यटन स्थल को धार्मिक पर्यटन सूची से बाहर किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रमोद जी। माननीय श्री राघव चड्ढा जी। Thank you, Deputy Chairman, sir, for allowing my notice for special mention. The topic of my special mention is concern over non-repatriation of gangsters operating from abroad. सर, आज मैं जिस मुद्दे पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ वो मेरे सूबे पंजाब का ही नहीं सर, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरह गैंगस्टर्स हमारे देश में पनपे और फले फूले हैं, उसका नतीजा है कि आज गैंग क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज से कुछ महीने पहले ही पंजाब में एक मशहूर गायक की गैंगस्टर्स ने हत्या कर दी थी। इन अपराधों के चलते माओ के जवान बेटे जान से हाथ धो बैठ रहे हैं सर। ये गैंगस्टर्स आज देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में बैठकर इन क्राइम्स को अंजाम दे रहे हैं। कुछ देश गैंगस्टर्स के ठिकाने बन गए हैं। माननीय राघव जी, जो अप्रूव टेक्स्ट है मैं वही पढ़ रहा हूं सर। नहीं, आप वो पढ़ने जो कटा हुआ है। मीडिया में वही पढ़ रहा हूं सर। मीडिया में छप रही खबरों के अनुसार अब गैंगस्टर कथित तौर पर थाईलैंड और दुबई जैसे स्थानों पर चले गए हैं, जहां से वे भारत के अपने गैंग्स संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार की खुफिया एजेंसी खुद मान रही है सर कि ये गैंगस्टर्स और आतंकवादी समूह अब मानव तस्करी और नशीले पदार्थों के नेटवर्क का संचालन करने लगे हैं। ये इनके पैसे, बाहुबल और प्रभाव को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है सर। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि अपना कूटनीतिक कौशल दिखाए, विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स को वापस इस देश लाए और यहां इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। धन्यवाद। ऑनरेबल श्री इरण कलाडी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। विषय बेलगाम में केंद्रीय विद्यालय के संदर्भ में है।
बेलगाम कर्नाटका दूसरा सबसे बड़ा जिला है और प्रशासनिक दृष्टि में महत्वपूर्ण है। बेलगाम के अंतर्गत गोकाक भी स्थित है, जो इस जिले का तालुक मुख्यालय है और यह शहर उद्योग, व्यवसाय, चिकित्सा, साथ ही शिक्षा, कला, साहित्य और लोक कला के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में हमारे ग्रामीण बच्चों के लिए कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है। बेलगाम जिले के कल्लोली गांव के मूडलगी तालुक में नए केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति के लिए शिक्षा मंत्रालय से भी अनुरोध किया गया था। जनता की मांग है कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के बेहतरी के लिए हमारे क्षेत्र में एक नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाए, जिसके लिए जिला प्रशासन निर्धारित केवीएस मानदंडों के अनुसार उपयुक्त भूमि प्रदान करेगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि बेलगाम जिला के मूडलगी तालुक के कल्लोली गांव में एक नया केंद्रीय विद्यालय स्कूल खोलने के लिए आवश्यक प्रस्ताव के लिए स्वीकृति दे और समय सीमा में इसको शुरू किया जाए, जिससे उस क्षेत्र के छात्रों को अच्छी शिक्षा की सुविधा मिले और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना में मूडलगी तालुक को अतिरिक्त गोकाक तालुक और उसके आसपास स्थित सवदत्ती, रायबाग, यरगट्टी और अन्य बड़े गांवों को बच्चों को भी अच्छी शिक्षा की सुविधा मिलेगी और यह केंद्रीय विद्यालय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर और सक्षम भारत के लक्ष्य के भी पूर्ति करेगा। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। माननीय ऑनरेबल श्री तिरुचि शिवा, ऑनरेबल श्री तिरुचि शिवा not present. Honorable members, the House stands adjourned to meet at 11 hours on Wednesday, the 21st December 2022.